Good morning, Tashi Dali. Good morning, Tasdale. Tashi Dali, Professor Emeritus Yeah, that's Dato okay. Osman Baka. Tashi Dali is a Halo independent. Yes. I am KC Liu, तो मैं किसी President लियो of Tibetan Buddhist तो Culture मैं Center, टिबेटन बुद्धिस्ट Malaysia. कल्चर सेंटर मलेशिया So का it's अध्यक्ष my हूँ। privilege and honor to cooperate with this forum with Muslim. तो इसके साथ आज मेरा एक सौभाग्य है कि जो मुस्लिम का फॉर्म है उसके साथ Our साथ topic today कार्य is करने का अवसर प्राप्त compassion हुआ। and mercy, तो आज का a विषय जो common करुणा value और दया between Islam है, and Buddhist. जो कि बौद्ध धर्म On behalf of the और इस्लाम धर्म organizer, में दोनों I समानताएं would like उसके to welcome our ऊपर। two eminent speaker, तो आज honorable guests, दोनों जो venerable स्पीकर्स Sangha हैं members, fellow उनका participants, अभिवादन करता हूँ। and online viewer और जो भी who are joining us today. जो लाइव देख रहे हैं उन सभी को So मैं I now invite उन सभी का मैं स्वागत करता moderator हूँ। Saudara Faiza, तो who is मॉडरेटर our सौदर co-organizer, फैज़ल as well as president of Muslim Youth जो कि मुस्लिम Malaysia योग to start the मूवमेंट forum. के अध्यक्ष हैं। Saudara Faiza, please, thank you. सौदर फैज़ा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and selamat pagi, Prof. Osman and Your Holiness. A very good morning. A warm welcome to our honorable speakers, तो आपको distinguished guests, इस फोरम and में आपका everyone स्वागत who है। has joined in this online और forum. जिसने भी इस फोरम को ज्वाइन किया है उसका President धन्यवाद। of मैं Muslim Youth Movement मैं Malaysia. फैज़ल जो मुस्लिम मूवमेंट मलेशिया We are honored का to एक have His Holiness the ऑर्गेनाइजेशन है Pathir उसका Dalai अध्यक्ष Lama, हूँ, Dr. कोऑर्डिनेटर हूँ। Yasso, and Professor तो Emeritus तेंजन Dato Osman Baka to share एजोलनेस their परम पावन teaching in दलाई this जामा जी forum. His और Holiness बकर is one of the जो greatest प्रोफेसर, Buddhist उनका religious स्वागत figures है। in the परम world, पावन जी विश्व an में advocate of एक जाने Buddhist माने dialogue. धार्मिक नेता He हैं। has received numerous awards, including the most notable recognition, तो the जैसा कि आप Nobel जानते हैं कि Peace परम Prize पावन जी in ने बहुत सारे 1989, उनको and the पुरस्कार प्राप्त Congressional हुए हैं Gold Medal, और the 1989 highest में civilian award of उनको USD शांति 2017. पुरस्कार भी His मिला। Holiness, और his अमेरिका का contribution जो and सबसे बड़ा legacy नागरिक सम्मान to the है world 2017 को consists प्राप्त of हुआ। what he calls as universal ethics and तो जो four आप परम पावन commitments जी of his जो life. यूनिवर्सल His एथिक्स four और commitments जो are 4 कमिटमेंट्स हैं, promoting the basic human 4 values प्रतिबद्धताएं of हैं compassion and जो dialogue, कि मनुष्यों के भी promoting religious सद्भाव, harmony धार्मिक among the सद्भाव different religious और faiths, जो तिब्बत के पर्यावरण और respect भारत की culture जो and environment, जो and last but not जो least, शिक्षा है, preserving जो भारत की Indian प्राचीन विद्या है, tradition. उसको बढ़ावा देना, ये परम पावन जी की Professor 4 Osman, on the other hand, प्रतिबद्धताएं हैं। is दूसरे the elegant प्रोफेसर mathematician उस्मान of epistemology तो वो and civilizational studies at एपोटिमोलॉजी और International सभ्यता का Institute जो of अध्ययन है Islamic Thought and Civilization, or ISTAC. This year, उसका अध्ययन कराते हैं। Professor was ranked as one of the 500 most influential Muslims तो in जो the publication The Muslim 500. तो जो Ladies and gentlemen, the flow of this forum will begin with the dialogue between तो Professor आज जो Osman and His का Holiness, संवाद है after प्रोफेसर which उस्मान we will और परम continue पावन जी के with the साथ question साथ and होगा answer session और उसके and साथ a साथ closing जो message क्वेश्चंस by the रखे जाएंगे। participants. Our topic for today's discussion is तो आज का compassion and विषय जो mercy है as जो the common करुणा, जो values बौद्ध धर्म between और Islam इस्लाम and धर्म में Buddhism. करुणा और जो दया है Professor Osman, उसकी क्या now समानताएं हैं। we would like you to lead the discussion. तो प्रोफेसर Thank उस्मान you. जी आपको मैं आह्वान करता हूं कि आप डिस्कशन को संचालित करें। Let me greet all of you तो आप with सभी the को मैं Muslim greeting. ग्रेटर्स Assalamualaikum. करता हूं, अस्सलाम वालेकुम Peace be बोलता हूं। unto you. Selamat pagi and a very good morning और इसके साथ साथ in सभी को particular सुप्रभात to His Holiness the Dalai Lama, और परम पावन दलाई लामा जी को to all dignitaries, भी प्रणाम। all attendees, और इसमें and the जिसने भी organizers of this. सहभागिता की है, जो भी देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस फोरम में बुलाया। On the panel, the conversation with His Holiness the Dalai Lama. और परम पावन जी के साथ एक संवाद के लिए चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Religious dialogue. तो अंतर धार्मिक जो संवाद Our contemporary वो world. हमारे इस विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरत है। Fortunate to have this
तो आज इस सुबह आज इस अवसर पर compassion and इस कार्यक्रम को, इस संवाद को लेकर के हम जो करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम धर्म और बौद्ध धर्म में करुणा का क्या महत्व है। religion. The same thing, it is very important और उसी के साथ साथ Asia, जो साउथ ईस्ट एशियन और एशियन जो देश कहते हैं उनमें के लिए इस्लाम और जो बौद्ध धर्म है दोनों बहुत ही बड़े बौद्ध जो धर्म हैं इनके। in my view, the main purpose of having interreligious dialogue, तो शायद जो हमारा उद्देश्य है कि अंतर्धार्मिक संवाद होना चाहिए, our commonalities, क्योंकि ये इस पे इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो कम्युनिटी है to see that वो लोग समझ सकें communities be strengthened and even broadened. और वो बढ़ सकें और ज़्यादा अपने विकास कर As सकें। differences are concerned, तो जहाँ तक minimize them. अंतर की बात करें तो जो अंतर हैं उनको वो अंतर कम हो सकें, भेदभाव कम हो सकें, इसके लिए हमारा प्रयास है। To nurture the culture of respect. और मेरा उद्देश्य यही है कि जो हमारी सभ्यता है, एक दूसरे का सम्मान करने सभ्यता है, वो उसको बढ़ावा मिल सके। Talking about the subject of compassion and mercy. तो आज हम लोग जो करुणा और दया इस पर संवाद होगा। That I would like to emphasize in this introductory remarks of mine. तो जो मैं अपना एक प्रकार से उद्बोधन दे रहा हूँ उसमें मैं कहना चाहता हूँ Mercy कि मर्सी जो शब्द है उसको या दया का जो शब्द है इस्लाम धर्म में किस तरह समझते हैं। of every, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दया है वो सभी धर्मों का एक सार है। although mercy has one reality, तो जहाँ तक दया के बारे में सोचें तो अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिए गए हैं understood in different ways. और इसको अलग अलग तरीके से भी लोग समझते हैं Differently in a different religion. और इसको एक अलग धर्म के रूप में भी Differently in other aspects of life or reality. Whether you are referring to mercy at the human level, तो जो ये वास्तविकता है at the divine level. चाहे आप मानव के स्तर पर देखें या फिर It's known और ऊपरी स्तर पर देखें तो इनके अपने व्यवस्थाएं होती हैं। semantic theme of the Arabic Rahmah covers compassion, तो जहाँ तक अरबिक में देखें तो ये चीज़ें हमारी जो करुणा, प्रेम और दयालुता and sympathy. इत्यादि, सहानुभूति आदि जो शब्द हैं लगभग मिलते जुलते हैं। जो रहमत, जो शब्द है रहमत, तो जो बौद्ध धर्म में करुणा कहते हैं Okay. और क्रिश्चियन में लव भी कहते हैं। This means that if Buddhists are looking for the Islamic equivalent of karuna, तो जहाँ तक अगर इस्लाम में देखें for the equivalent of तो इस्लाम धर्म तो उसको मर्सी या दया कहते हैं, बौद्ध धर्म में करुणा, rahmah, और ईसाई धर्म में जहाँ तक उसको प्रेम कहते हैं और उर्दू में रहमत। तो मुख्य रूप से viewed as central. तो आखिर को जो मर्सी है, जो दया है, वो इस्लाम धर्म का केंद्र बिंदु कैसे होता है। Is the most तो इस आधार पर आप समझें कि जो करुणा है, जो दया है, जो ईश्वर की एक प्रकार से गुण है, इसको मानते हैं। divine attribute as तो जहाँ तक जहाँ उनके गुण को देखें तो इनके दो भागों में बांट सकते हैं, तो जिसके के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। man, तो अर्रहमान, translated as the most gracious, तो इसको सबसे ज़्यादा translated as the most पवित्र मानते हैं, और अर्रहीम जिसको कि बहुत ज़्यादा करुणामय मानते हैं। Ar-Rahman, तो अर्रहमान refers to God, जिसको कि ईश्वर को संकेत करते हैं, while the word God does not exist. लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार तो कोई भगवान नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं होता है। But I'm using लेकिन मैं इस्लाम धर्म के हिसाब से बता रहा हूँ। Abrahamic religion. So Ar-Rahman refers to God's abounding grace and infinite mercy. तो जो भगवान है उसमें एक अनंत प्रकार के दया होती है, ये इस्लाम धर्म की मान्यता है। Infinite good. The Rahmah that overflows
तो जो हमारी रहमत या फिर जो हमारा एक चलन है, or the universe. जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो सब हमारे अल्लाह ने बनाए हुई हैं। फिर ईश्वर की वजह से, अल्लाह की वजह से जो दया है वो बढ़ती चली जाती है Far and wide. This is what और ये हमेशा बड़ी रहती है। Rahman refers to what may be called God's infinite, तो इसको जो इस्लाम धर्म में कहते हैं कि जो ईश्वर की जो है अनंत प्रकार की दया है, Rahim, उसकी कोई नाप तोल नहीं होते हैं। God's infinite compassion and और- love for humanity, और इस जो मानवता है उसके लिए उनकी दया बनी रहती है, उनकी भलाई में उनके। refers to what may be called God's saving mercy. तो ऐसा कहा जाता है कि जो दया है वो हमेशा बने रहने चाहिए। तो दूसरी बात ये इस्लाम में कहा जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद ने Personification of divine mercy. तो उन्होंने भी डिवाइन जो मर्सी है, दया, उसके बारे में बारे में कहा है। But as a mercy for all creatures. तो ये है, वो कह रहे हैं कि केवल ये एक लोगों के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए, दुनिया में सभी जीवधारियों के लिए है। The divine expectation of Muhammad as a prophet is to be compassionate, तो जैसा कि मोहम्मद ने कहा कि जो भी व्यक्ति है तो सभी लोगों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, सभी के लिए हित करना चाहिए। his life is तो मोहम्मद साहब ने को देखें कि उनका जो जीवन सभी लोगों के लिए लगा रहा, करुणा और प्रेम उस पूरे जीवन वो करते रहे। since he is the role model for Muslims. What this means is that तो हालांकि वो मुस्लिम के एक रोल मॉडल के रूप में उनको मानते हैं। of compassion, mercy, and kindness in their lives. The third reason, the Quran claims that it is a manifestation of divine mercy. तो इस प्रकार से Of divine mercy. The Quran says it is taught by the most gracious. तो कुरान में कहा जाता है कि इसको जो है एक जो बहुत ही Says when the Quran is read, listen to it with attention. तो इसको जो है हमें एक पूरी सावधानी के साथ सुनना चाहिए, अच्छी तरह से सुनना चाहिए। तो हमेशा रहमत बनी रहना चाहिए, मर्सी, दया बनी रहना चाहिए। Mercy to those who believe. The fourth reason is about the law, the divine law. फिर जो फिर नियम की बातें आती हैं, यानी कि सील के बारे में बातें आती हैं। But in reality, the Sharia, the divine law, तो जो चर्या या फिर guidance and mercy तो इसके बारे में देखा जाए तो वास्तव में वो दया ही होती है और सबके लिए होती है। could only be appreciated if one also accepts the idea that God, the lawgiver, is also God. तो ये कहते हैं कि जो ईश्वर है वो नियम को बनाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा करुणामय हैं, बहुत ही दया दिखाते हैं और वही वास्तविक हैं। The word Sharia in तो the चर्या को जो शब्द जो कुरान में कहा गया है, is translated as the right way तो of इसको यही कह सकते हैं कि जो सम्यक आचरण, lead to salvation. और यही सम्यक आचरण जो कि हमें निर्वाण की प्राप्ति देता है, मोक्ष प्राप्त कराता है। The Sharia is guidance and mercy and not compulsion. And तो एक प्रकार से ये जो आचरण के लिए होते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठोर दंड इस बार करने की आवश्यकता नहीं है। realization of the virtues of compassion. तो अपने गुणों को किस प्रकार से हम संरक्षित कर रहे हैं, The fifth करते जाएं। why mercy is central. तो फिर इसके बाद बात बनती है कि एक जो दया है उसको केंद्र बिंदु क्यों मानते हैं। तो वो एक ईश्वर की, हमारे अल्लाह की Essential attribute तो एक खासियत है, उनका एक विशेषता है। that mercy is both divine and human quality. तो जहाँ तक दया की बात देखा जाए वो कोई ऐश्वर्य है और वो लोगों के लिए भी होते हैं। Islam, like Judaism and Christianity, जैसा कि इस्लाम, यहूदी धर्म को देखें, human being by nature ईसाई धर्म को देखें, endowed with God-like qualities. तो वो सारे की सारी चीज़ें जो हैं Details, the idea of human as the image of God has been understood. वो ईश्वर के द्वारा आरोपित की जाती, बनाई जाती हैं। Here is that तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कि अगर मुस्लिम धर्म की तरफ से देखें, उनको अगर तुलना की जाए तो फिर भगवान की और मनुष्य की जो विशेषताएं हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। the seed of divine mercy is implanted in human nature. और जहाँ तक जो दया है बचपन में लोगों में स्वभावतः रहती है, इसलिए हम लोगों को दयावान रहना चाहिए, क्योंकि Provide the spiritual जो जहाँ तक धर्मों की जिम्मेदारी है तो वो सामाजिक कार्य ये चीज़ें हमें उपलब्ध कराते हैं। within our nature can be nurtured and cultivated. तो हमारी प्रकृति में है तो इसको और बढ़ाया जा सकता है और
किया जा सकता है। तो इसलिए हमें दयावान और करुणामय होना चाहिए। Education understood in the broadest sense और plays जहाँ a तक role इसको in the शिक्षा के रूप में nurturing and cultivation समझाया गया of है कि inborn इसको जितना seeds ज़्यादा of आप बढ़ा compassion सकें, क्योंकि and ये तो mercy. हमारे अंदर Just like बचपन से the ही other होती seeds है। of the Torah जैसे ही activity, but what's central जन्म here लेते हैं is तभी से ही आ जाती compassion है। and mercy. Thank you very much तो for that इसीलिए ये मेरा मैं आपको संक्षेप में इसके बारे में बताना चाह रहा था कि इस्लाम धर्म के अनुसार क्या क्या इसके महत्व हैं। Thank you, Prof. Thank you, Professor, for the enlightenment. Your Holiness, तो we प्रोफेसर now आपने would like to जो hear बातें from उसके लिए you बहुत बहुत on धन्यवाद। compassion and mercy तो from आप Buddhist परम पावन जी, perspective. मैं आपको आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। Firstly, indeed, I feel great honor तो सर्वप्रथम मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मलेशिया के जो मुस्लिम समुदाय उनके साथ आज वार्ता कर रहा हूँ, और इसके अलावा बहुत सारे जो नेतागण हैं जो समाज में कार्य कर रहे हैं उनसे मिल रहा हूँ। तो इस बात की बहुत ही खुशी हो रही है। in my small village. तो मैं अपने बचपन के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक छोटे से There are गांव में already पैदा some हुआ Muslim families. और वहाँ पर कुछ मुस्लिम परिवार रहते थे Very sort of close. और हम लोग काफ़ी उनके नज़दीक थे। हमारे संबंध उनके साथ बहुत अच्छी से गहन संबंध थे। After I reached Lhasa, फिर जब मैं ल्हासा आ गया, according Tibetan government tradition, तो तिब्बती सरकार के जो परंपरागत जो एक विधि थी, government function, तो जब भी एक सरकारी जब कार्यक्रम होते थे तो उस समय मुस्लिम कुछ प्रतिनिधि लोग आते थे, जो स्थानीय मुस्लिम लोग थे, वो हमेशा आकर के उसमें सहभागिता करते थे। then according some sort of, what's the history, और इतिहास के अनुसार से देखें तो हमारे इतिहासों में भी दर्ज है 5th Dalai Lama कि 5वें दलाई लामा के समय from Ladakh, तो कुछ मुसलमान जो कि लद्दाख से Lhasa. ल्हासा में आए थे, Then 5th Dalai Lama provided और land तो उसके बाद जो 5वें दलाई लामा जो थे तो उन्होंने वहाँ पर अपनी उनको मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन भी दी थी, मदद की थी। since my childhood. This is the Muslim representative of Lhasa, very familiar. तो उस समय से ही जो ल्हासा में मुस्लिम लोग रहते थे हमारे अच्छे चिर परिचित थे, उनके साथ अच्छे संबंध थे। In a way, joke, but in a way, तो कभी कभी मैं मजाक में और कभी उसको मजाक या सत्य कुछ भी आप मान सकते हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ उनसे मैं कहता हूँ the reincarnation कि जो 13वें दलाई लामा के जो अवतार हैं Amdo area. तो वो आमदो एरिया में जो जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर उनको खोजा जाएगा, वहाँ वो मिलेंगे। Tibetan government delegation, तो उसके बाद तिब्बती जो हमारी सरकार के प्रतिनिधि लोग थे my area, तो मेरे उस गांव के क्षेत्र में गए, तो जो कुंभ एरिया था वहाँ पर वो गए and try to investigate. और फिर वहाँ पर उन्होंने परीक्षण किया, खोजना प्रारंभ किया। 3 boys. तो वहाँ पर फिर उस समय 3 बच्चे थे। The search party reached there. तो फिर जब खोजी दस्ता वहाँ गया Then only 2. तो एक बच्चा तो जो गुजर गया था, 3 बच्चों में My से mother told me एक बच्चा गुजर गया था जो उस एरिया में थे। the other boy तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि जो carrying दूसरा जो बच्चा है his mother अपनी माँ के, by mother, वो अपनी माँ, उसकी माँ उसको लेकर के आई। warlord. Then that boy very much afraid. तो जैसे वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, Give तो फिर उस बच्चे को कुछ मिठाई दी like that. और उसने एकदम से झटके से झपट लिया, एकदम से पकड़ ली जी। More sort of sweet.
तो उसने मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद की। And then next, my visit, फिर उसके बाद वो Warlord मेरे पास आए, Matushi. We बार call लॉर्ड। Matushi. So when फिर जब मेरे पास आए, मेरे घर पे आए, enter, और जब मेरी माँ मुझे लेकर के आ रही थी, I very much sorrow, उस कमरे में लेकर के गई, full of dignity, तो मैं जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित था, बहुत ज़्यादा, कोई डर नहीं था, एकदम से मैं निर्भय था। फिर जब मुझे मिठाई दी गई one sweet, तो मैंने केवल एक मिठाई उसमें से ली give my mother, और ये मैं अपनी माँ को दी, one keep myself. और एक तो मैंने अपनी माँ को दी, 2 उठाई उसमें, एक तो माँ को दे दी और एक मैंने रख ली। Matushi. उसके बाद वार लॉर्ड, Now, this boy is Dalai Lama. तो जो वहाँ पर सेनापति थे, तो उसने कहा कि ये जो बच्चा है ये दलाई लामा है। He, I don't know, he noticed, you see, my eye, there was तो something. मुझे पता नहीं कि उसने कैसे पहचाना, तो उन्होंने मेरी आंखों को देखा, इस तरह से देखा कि इनकी आंखें अच्छी हैं, This boy, तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा जो दलाई लामा का अवतार होगा। from that viewpoint, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, उसे तरीके से देखा जाए, the person who recognized me, तो मुझे जिस आदमी ने मुझे पहचाना, the first person is Muslim, तो वो बंदा जो था वो मुस्लिम परिवार से था, the local warlord. जो स्थानीय, So then, ज़्यादा देखा जाए कि जो सेना थी उसकी टुकड़ी का एक प्रकार से सेनापति कह लो, जो भी कह दें, उस तरह का बंदा था। तो मेरा परिवार उनके साथ, जो मुस्लिम परिवार है उनके साथ ऐसे संबंध रहे। तो मैं कभी कभी अपने लद्दाखी मुस्लिम जो मित्र हैं उनसे कहता हूँ, first also official or person, high official, जो पहला जो बड़ा अधिकारी था, वो समाज में जो बड़ा अधिकारी उस समय जो था, some important person, they who recognized me, the और जिसने मेरी जो पहचान की, तो उसमें से एक मुस्लिम था जो सबसे पहले जिसने मेरे कहा कि ये दलाई लामा हैं, हो सकते हैं, तो वो कहने वाले मुस्लिम थे। some special connection. तो इस वजह से मेरा मुस्लिम लोगों के साथ एक ख़ास संबंध बन जाता है। As I mentioned earlier, when we reached Lhasa, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि जब ल्हासा आ गया, गांव से लेकर के जब ल्हासा से आया, तो वहाँ पर एक मुस्लिम की छोटे से एक समुदाय था। mainly it's a Podala monk, तो जो पुताला के एक भिक्षु थे, visit Mongolian shops. तो फिर जो बच्चे जो थे, तो जो मंगोलिया की दुकानें थी वहाँ पर जाना पसंद करते थे। Many monks in Lhasa, in Podala, तो बहुत सारे जो भिक्षु जो पोताला में रहते थे, source of information about India. These Muslim, तो ये जो लद्दाख से आए हुए मुस्लिम होते थे, या जो मुस्लिम वहाँ पर जो अपनी दुकानें लगाते थे, तो बहुत सारे जो भारत से जानकारी लेकर के आते थे, भारत में कैसे रहते हैं इत्यादि। then they get about the story Mahatma Gandhi, फिर उसके बाद वो महात्मा गांधी की कहानी उनसे सुनते थे plus और चीज़ें उनसे सूचनाएं प्राप्त करते थे। Muslim food. और फिर बहुत अच्छे जो मुस्लिम जो एक प्रकार स्वादिष्ट भोजन है वो भी वो लोग देते थे। Namgyal monastery monk, तो कुछ नामगल मोनेस्ट्री के जो भिक्षु थे, जो कुछ खासकर जो बुजुर्ग हो जाते थे, तो मंगोलिया की जो दुकानें होती थी उनकी दुकानों पे जाते थे, तो पहले तो वो उनसे कहानियाँ सुनते थे, फिर अच्छा भोजन भी मिल जाता था। so that's Muslim shops. what's the story. So since my childhood, तो मैं आपका मंगोलिया मुस्लिम दुकानों पर जाते थे। so now this time is a meeting with a Muslim group. तो अभी जो हम अभी मुस्लिम समुदाय से मिल रहे हैं, उनसे ग्रुप से मिल रहे हैं, और जो मुस्लिम मलेशिया के एक संघ है उसके जो प्रेसिडेंट, उनसे भी अभी वार्ता हो रही है। Is तो पहली मेरी जो प्रतिबद्धता है religious वो जो धार्मिक सद्भाव है उनमें से, reason. तो उसकी एक कार्ड भी है, तो उसकी वजह है, और वो जो वजह है वो भी बहुत ही आसान है, You already mentioned बहुत ही सरल है। human compassion, जैसा कि आपने कहा concern of कि जो करुणा के बारे में आप देखें, तो दूसरों के बारे में अगर आप सोचें, तो ये मनुष्यों के जो जीवन है उसका एक
अंग We है। are social animal. तो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक लोग हैं। Entirely depend on the community. तो हमारा जो जीवन है पूर्ण रूप से समुदाय पर निर्भर करता है। From first hour when we born, तो इस प्रकार से अगर देखें, जैसे ही हम पैदा होते हैं maximum affection तो ज़्यादा our mother. जो भी हमें प्यार मिलता है वो हमारी माँ से प्राप्त होता है। माँ के स्तनपान से मिलता है, उनके दूध हम लोग पीते हैं। तो वहाँ से ही जो मूल जो प्यार है, स्नेह है, वहाँ से प्राप्त होता है और वहीं से हम सामाजिक एक प्राणी बन जाते हैं। Sometimes I jokingly express some story. तो कभी कभी मैं मजाक के Master, रूप में कहानी कहता हूँ। भारत के बड़े बड़े जो नेता लोग हुए हैं उनके बारे में कहानी कहता हूँ। कुछ लोग जो कमल से पैदा होते हैं may have closer feeling with lotus rather than human being. तो वो उनके बारे में कहता हूँ कि उनकी जो है कमल के साथ कहीं ज़्यादा Mother, भावनाएं रही होंगी मनुष्यों की बजाय। तो हम लोग तो मनुष्यों से पैदा अपनी माँ से पैदा हुए हैं, तो हम उनके स्तनपान करके बड़े हुए हैं। ये तो हमारे उनके लिए एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जो स्नेह है वो ज़्यादा रहता है। almost I think living being on this planet. तो आप इस दुनिया में देखें, जो भी लोग इस दुनिया में रहते हैं या अपने जीवन को चलाते हैं, Sense of caring, तो वो अक्सर देखो कि एक दूसरे के millions of birds. जो केयर है, जो रख रखाव है, उस पर निर्भर करते हैं। आप देखिए चिड़ियाँ, बिल्ली, कुत्ते इत्यादि को आप देख लें, उनके भी अपने जीवन जीने की जो कला है, जो तरीका है, वो भी On the community. अपने समुदाय पर निर्भर रह कर के जीते हैं। एक दूसरे का रख रखाव करते, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। So now today, our world, everybody want happy life. तो आज आप देखें कि हर कोई चाहता है कि उसको एक अच्छा जीवन मिले और सबका एक अधिकार भी है। सभी को एक खुशहाल जीवन जीने का अधिकार है, अपने जीवन को जीना चाहिए। Lot of problems और उसके साथ साथ which we बहुत humans सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी on this planet. जो झगड़े इत्यादि रहते हैं। और हम इस देखते हैं इस पृथ्वी पर कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं, और जितने भी जो ज़्यादातर समस्याएं हैं वो हम मनुष्यों ने बनाई हैं, Actually, our human beings creation. और ये मनुष्यों के द्वारा निर्मित समस्याएं हैं। So that's now today's reality. और यही विश्व की सत्यता है। बहुत सारी समस्याएं हैं और हम स्वयं ने बनाई हुई, हम मानवों के द्वारा निर्मित की गई जो समस्याएं हैं। We must go deeper level. We are human being. We are social. हमें समझना चाहिए कि हम लोग मनुष्य हैं, जन्म से मनुष्य हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। ये हमें सोचने की आवश्यकता है। Human compassion. और हमें अगर जीवन को चलाना है तो दूसरों की करुणा, दया, यही संभव है, इसी के संभव हो सकता है। Human love, kindness, इसलिए जो प्रेम, करुणा key factor for our survival. हमारे जीवन जीने के लिए एक प्रकार से All religion of human being, एक प्रकार से आधार है। बिना इसके हम नहीं रह सकते हैं। loving kindness. और जो भी है, जो भी लोग हैं, जो भी धर्म है इस दुनिया में, वो सभी प्रेम और करुणा की बातें करते हैं, सभी इस पर जोर देते हैं। It is quite simple. और ये बहुत आसान भी है। To also they increase belief. अगर आप किसी Importance of loving kindness. अगर आप प्रेम, करुणा, मैत्री में अगर आप विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो उसके अलग अलग बहुत सारे सिद्धांत भी हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, अलग अलग व्याख्या की गई हैं। All believe God. जो ईश्वरवादी परंपरा है वो सृष्टिकर्ता को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। Very nature of Allah. वो तो जहाँ तक अल्लाह और या फिर जीसस को देखें, उन सभी को देखें, जो भी भगवान या ईश्वर, अल्लाह जिसको भी मानते हैं, तो उन सब में प्रेम और करुणा से ओतप्रोत होते हैं, भरे होते हैं। Is a concept of ahimsa. तो भारत में आप देखो पिछले 3000 वर्षों से जो कि करुणा और अहिंसा का सिद्धांत यहाँ पर है। Over 3,000 years, people now I think that's oldest here
karuna, ahimsa, already और जो करुणा अहिंसा का जो सिद्धांत है important. ये सबसे प्राचीन है Ahimsa. और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। So all major world tradition, आप जिसमें भी देखें विश्व की जितनी बड़ी बड़ी धर्म परंपरा हैं karuna, वो सभी के सभी करुणा का संदेश देते हैं, अहिंसा का संदेश देते हैं। तो ये सब बड़े धर्मों में वहाँ पर व्याप्त है। also you see in India over 3,000 years, और उसके अलावा आप देखें कि 3000 वर्ष पूर्व भी ये भारत में पद्धति विकसित हो गई थी कि किस प्रकार से हम अपने चित्त को परिशोधन करें। तो जैसे कि इसको समत कहते हैं, एकाग्र अपने चित्त को एकाग्र करना समत कहते हैं। उसके बाद परीक्षण करना अर्थात विपश्यना। तो ये जो समत और विपश्यना की दोनों परंपराएं over 3,000 years, पिछले 3000 वर्षों से स्थापित हो चुकी थी, विकसित हो चुकी थी कि किस प्रकार से हम अपनी भावनाओं को समझ सकें the strengthening. और इनको कैसे बढ़ाया जा सके, इनको कैसे सकारात्मक बनाया जा सके। So positive emotion, constructive emotion, not just come through prayer, और जहाँ तक आप सकारात्मक विचार के बारे में बात करें very important. तो वो कई प्रार्थनाओं से या पूजा पाठ से नहीं होगा, वो केवल अभ्यास करने से, चित्त शोधन करने से ही संभव होगा। Develop. India already developed the how to train our mind, how to utilize our तो intellect. ये तो प्राचीन समय से ही शुरू हो गई थी कि किस प्रकार से हम अपने चित्त का उपयोग करें, किस प्रकार से अपने मन का उपयोग करें, किस प्रकार की जो हमारी भावनाएं आती हैं उन पर काबू पाएं। Constructive. तो ये जो व्यवस्थाएं जो थीं, जो सकारात्मक व्यवस्थाओं को बनाने की, मानसिक स्थिति को बनाने के लिए ये पूर्ण रूप से थी कि हमारे जो नकारात्मक विचार हैं उनको हम कैसे नष्ट कर सकें। I think earliest. Then after that, Buddha. तो सबसे पहले तो भारत में ये चीज़ें हुई, फिर तथागत बुद्ध हुए और उन्होंने भगवान बुद्ध ने तो पूरा जीवन करुणा पर अपने उपदेश दिए, करुणा पर एक प्रकार से नियत रह करके उपदेश दिए। Much emphasis फिर आप सांख्य दर्शन को भी देखें तो वो भी अहिंसा के जोर देते हैं, करुणा के बारे में बात करते हैं। Then, gradually, I think in the Middle East, फिर आप मिडिल ईस्ट में देखें come फिर मोहम्मद साहब आए। the main message तो प्रोफेट मोहम्मद का भी जो एक संदेश था वो भी करुणा था। sword, तो हालांकि वो एक तलवार लेके चलते थे serving human being. लेकिन उनका उद्देश्य यही होता था कि मनुष्यों की मदद करना, मनुष्यों की सेवा करना। Circumstances is without sorrow, a weapon difficult to spread. So that's understandable. And then Jesus Christ. तो उसके बाद जो आप जीसस को देखें, ईसा मसीह को देखें And Zoroastrianism. और यहूदी धर्म को भी आप देखें, All these major religious tradition. तो जो भी बड़ी बड़ी परंपराएं हैं ये सारे के सारे अपने जो संदेश जो उनके हैं, Today, जो प्रेम और करुणा के संदेश होते हैं। तो आज के समय में विश्व को करुणा की आवश्यकता है to create better, happier, और अच्छा और खुशहाल अगर विश्व बनाना चाहते हैं तो उसके लिए करुणा की आवश्यकता है। and past few centuries. तो आप एक दुर्भाग्य की बात है कि पिछली कुछ शताब्दियों में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया Different weapons. और बहुत सारे हथियारों का निर्माण हुआ, बहुत सारे औजार बने कि किस प्रकार से एक दूसरे की हत्या कैसे कर सकें, दूसरों को कैसे मारा जा सके। तो ये पिछली शताब्दियों में कार्य हुआ। About our anger. तो अपने क्रोध पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया, डर पर ज़्यादा ध्यान दिया, Pay attention about how to develop peace लेकिन of mind. ये नहीं कोशिश की कि आखिर को जो मन है वो खुशहाल कैसे हो सकता है, कैसे मन की शांति आ सकती है। Still remain, so that's how the traces of that tradition. तो पिछली कुछ शताब्दियाँ इस प्रकार की बनी रहीं। तो अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं। Now we should pay more attention how to develop inner peace,
तो अब हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम whether करुणा का अभ्यास करके जो आंतरिक मूल्य उनको कैसे बढ़ा सकें। चाहे आप आस्तिक हों या नास्तिक हों, लेकिन फिर भी एक मनुष्य होने के नाते हमारे जो अकुशल सोच है, अकुशल विचार है, बुरी विचार है, उसको हमें हटाना है। even you see in India, there is sort of what's the concept of secular. तो भारत में जो धर्मनिरपेक्ष की भावना है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप किसी धर्म को मानें ही, तो धर्मनिरपेक्ष रह के The emphasis आप इन चीज़ों का अभ्यास कर सकते हैं। now through education. और मैं अक्सर ये जोर देता हूँ कि शिक्षा के द्वारा ही ये संभव हो सकती हैं। You see, और आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है external और वो जो बाहरी चीज़ें हैं अर्थात भौतिक विकास पर आधारित शिक्षा है, इस शिक्षा में आंतरिक मूल्यों के बारे में nowadays, ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। including scientists, तो अब आप देखें कि धीरे धीरे अब वैज्ञानिक लोग भी ये मानने लगे हैं कि education, हमें और जो शिक्षा है, जो आंतरिक शिक्षा है, quality. आंतरिक मूल्य है, इस शिक्षा की हमें आवश्यकता है, करुणा रूपी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आज के लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं। I usually call the hygiene of physical तो जैसा कि मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जिस प्रकार से जो हमें एक अच्छे शरीर की आवश्यकता है, उसी प्रकार से अच्छी भावनाओं की भी हमें आवश्यकता है। when you see when we think about hygiene of emotion, तो जब हम अपने compassion is the key factor. जब हम करुणा के बारे में चिंतन करते हैं, Peaceful emotion, तो उस समय जो हमारी भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। negative destruction, these are और इनके द्वारा ही हमारे नकारात्मक विचार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नकारात्मक भावनाओं की वजह से ही anger is हमारे अंदर क्लेश आते हैं। और जब क्रोध आए तो उनको नष्ट करने के लिए main message. हमें करुणा का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के विपरीत करुणा का अभ्यास है। Different philosophy, और उसके लिए अलग अलग दर्शन, अलग अलग सिद्धांत इनकी आवश्यकता रहती है। लेकिन सभी का जहाँ तक मूल जो एक विचार से विचार है वो करना होती है। very important. तो मैं मानता हूँ कि आज के समय में जो धार्मिक सद्भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Very reason of different religion and killing each other. तो बहुत सारे आप जो उदाहरण होते होंगे कि एक दूसरे को मारते हैं। और मुस्लिम धर्म में भी देखें कि शिया और सुन्नी एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। तो आप सऊदी अरेबिया में देखें, टर्की में देखें, Sunni differences, तो उसमें शिया और सुन्नी का जो झगड़ा रहता है। it's a conflict. So therefore, now it is very, very, very sad. तो ये बड़ी दुखद घटनाएं हैं कि धर्म के नाम पर ये चीज़ें हों। The only message, only tradition which carry message of love. तो धर्म का काम यही होता है कि जो प्रेम का संदेश देते हैं। और फिर आज धर्म जो है जो भेदभाव का अंतर करने के अंग बन गए हैं, हत्याएं करने के साधन बन गए हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। Follow different religion. तो हम लोग जो अपने अपनी परंपरा को मानते हैं, धार्मिक एक प्रकार से अनुयायी हैं, तो हम लोगों को एक सकारात्मक विचार करना चाहिए और एक कोशिश करना चाहिए कि जो धार्मिक सद्भाव बन सकें। Now, as Muslim, I feel they within the same sort of basically it's the same sort of tradition, but you see small differences Shia and Sunni. तो मुस्लिम जो जहाँ तक है एक धर्म है, लेकिन फिर भी शिया और सुन्नी आपस में जो एक दूसरे का हत्या कर देते हैं, झगड़े करते हैं, वो दुखद है। हम जो धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले हैं, हम धार्मिक लोग खास करके, Have special ऐसी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जो मुस्लिम भाई बहनों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो धर्म के नाम पर झगड़ा करते हैं, शिया और सुन्नी के नाम पर झगड़ा करते हैं, उनको नष्ट करना चाहिए, हटाना चाहिए। I never heard problem between लेकिन भारत में मैंने कभी भी शिया और सुन्नी के बीच झगड़े हो रहे हों, इस प्रकार की घटना कभी नहीं सुनी। also the traditional also the habit. तो भारतीयों की जहाँ तक एक No problem.
एक आदत के रूप में देखें तो यहाँ पर शिया सुन्नी आपस में रहते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो संदेश हैं, मैं अक्सर कहता हूँ भारतीय मुसलमानों से कि आपके जो पड़ोसी देश हैं उनको दिखाओ, harmony among all religions. और सभी धर्मों के बीच भी सर्वधर्म संभाव है वो भी लेकर के आएँ। और मुस्लिम जो शिया और सुन्नी उनके बीच में भी इस के बीच में भी इनको रखें। Buddhist monk, तो मैं जो है बौद्ध भिक्षु हूँ, but I totally लेकिन फिर भी मैं regarding जो जहाँ तक धर्मों की सद्भाव की बात हो, एक दूसरे के साथ सामंजस्य हो, इसके बारे में बात करता हूँ। तो भारत एक उदाहरण है जहाँ पर एक सर्वधर्म संभाव की संभावना बनती है। live together. भारत में दुनिया के सभी बड़े बड़े धर्म के मानने वाले यहाँ पर रहते हैं, संभव है। भारत एक उसका उदाहरण है। So with that belief, I totally committed also the तो इस विश्वास के साथ जो धार्मिक सद्भाव है उसकी प्रमोट करने में लगा हूँ। Your Holiness, I couldn't agree more with what you said. That, for example, for the Muslims, the question of तो इनका कहना है, dialogue within the same religion. तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि शिया और सुन्नी के साथ आप जो कह रहे हैं संवाद करना चाहिए, तो मैं नहीं मानता हूँ कि होना चाहिए। Same religion. एक ही धर्म के बीच में क्या आवश्यकता है। What the key is, we should have compassion and mercy. That is the key to peace in this. तो मैं मानता हूँ कि बात करने से नहीं होगा, मन में ही अगर हमारे अंदर दया हो और करना हो तो संभव हो सकते हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। What you have said regarding what the humanity needs today more than ever. right. Thank you. So perhaps I think there are many questions among. तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं। In terms of dialogue between the two, in terms of differences, people look at differences rather than similarities. तो लोग में बहुत सारे अंतर हैं, Experience बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, तो वो आप these commonalities उनके साथ रखे जाएंगे, आपके साथ रखे जाएंगे broaden. कि किस प्रकार से हम जो समुदाय को और ज़्यादा बना सकें, बढ़ा सकें। And जो बौद्ध हैं और मुस्लिम लोग हैं उनके साथ साथ एक अच्छा संबंध हो सके। than what we think. Sometimes तो बहुत सारी तो हमारी समानताएं हैं, तो उन समानताओं के साथ साथ समानताएं तो हैं ही, फिर भी हम अंतर देखते हैं, तो इनको कैसे दूर किया जा सकता है। we would like to see a new तो मलेशिया में बहुत सारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, मुस्लिम हैं, तो उनके साथ संवाद होना चाहिए। good beginning for us. तो हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, सुखद बात है। Here, I adopted one method. I think about 90, 그들의 75. 추유 가도 bread, 5. 75 bread. तो एक 1975 में एक मैंने कार्य किया था। 2000 bread. 1975. Oh, 75. 1975 की एक बात है। Started one practice. तो एक मैंने अभ्यास प्रारंभ किया था। Wherever तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी जाता हूँ, to pilgrimage, all जहाँ भी भ्रमण करने के लिए जाता हूँ, तो जहाँ पर जो सभी जहाँ पर धर्म रहते हैं, धर्म के मान्यताओं के लोग रहते हैं, temple, तो मैं सबके तो अलग अलग धर्मों के मंदिरों में Sanat. मैं जाता हूँ। तो ये सारनाथ से मैंने प्रारंभ किया था। I think one Christian, तो वहाँ पर जो एक चर्च था, वहाँ भी गया, वहाँ उनसे मिलने गया। Muslim, फिर जो मस्जिद थी उनसे भी उनकी मस्जिद में गया। Hindu. फिर हिंदू के मंदिर थे वहाँ भी उनके में गया। फिर बौद्ध मंदिर थे वहाँ भी गया। Pay pilgrimage. तो इस प्रकार से मैं लगभग सभी जगह पर सभी परंपराओं के लोगों के साथ में मिलता हूँ, उनके तीर्थ स्थल पे जाता हूँ। It is quite funny. The occasion, you say,
this is my practice everywhere. तो ये मेरा एक अभ्यास का I think अंग है। also. तो जब एक बार जो रिवलसार में मैं गया Then the last sort of pilgrimage. तो उस समय जब अंतिम मेरी ये जो यात्रा वहाँ की थी तो एक मंदिर में मैं गया। Ah, the Sikh, or Sikh, Gurdwara. तो मैं जो अंतिम में गुरुद्वारा गया It becomes the last one. तो मेरी जो यात्रा का अंतिम एक प्रकार से यात्रा थी। Give you prasad. तो वो अक्सर जब गुरुद्वारा जाओगे तो आप प्रसाद देते हैं, कुछ खाने के लिए देते हैं। When I reached there, तब जब मैं वहाँ गया sort of stop. तो मेरा एक प्रकार से लास्ट जो वहाँ उस गुरुद्वारा का एक लास्ट विजिट था। तो मुझे भूख लगी रही थी Taste. तो जो प्रसाद मिला तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भूख भी लग रही थी। तो मुझे एक आशीर्वाद के रूप में मुझे लेना था, एक मुट्ठी भर के मिलता था। Very good for तो उस आशीर्वाद तो छोड़ो, लेकिन मुझे पेट के लिए बड़ा लाभदायक हुआ। जो भूख लग रही तो उस समय मुझे फ़ायदा हुआ। तो ये एक मजाक के तौर पे कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इस प्रकार की मैं एक साधना करता हूँ कि जहाँ भी मैं जाता हूँ तो सभी लोगों से मिलता हूँ, there are तो जिससे कि लोगों के भी सद्भाव बने। Muslim तो जेरूसलम में एक बार मैं गया temple, तो वहाँ पर ऐतिहासिक मुस्लिम Christian temple. मंदिर थे, वो जो मस्जिद थी, और क्रिश्चियनों के जो चर्च भी था, ज्यूस का भी था। So I start, you see, pay my respect each तो फिर उसके बाद मैं हर like that. हर परंपरा का जो मंदिर या मस्जिद जो भी थी वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर उनसे मिलने गया। Individual religion, something different. तो व्यक्तिगत तौर पर अगर देखे जाएं तो हमारे अलग अलग धर्म हो सकते हैं, अलग अलग परंपराएं हो सकती हैं, All major world लेकिन जो सामान्य रूप में देखा जाए तो हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। these different और मानवता को इन अलग अलग परंपराओं की आवश्यकता है। Apart from excuse me, Your Holiness, apart from what you have said regarding the need to spread compassion and mercy, as far as education is concerned, what do you see for the 21st century? How can we improve further? तो मेरा प्रश्न है कि I think most people आप जो agree जैसे we कह need रहे हैं कि compassion, 21वीं शताब्दी में हमें करुणा की आवश्यकता है, दया की आवश्यकता है, लेकिन कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या करना चाहिए? doing our joint social works and so on, more dialogues. तो क्या करना चाहिए? What else that could be done? तो हमने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए, संवाद भी हुए, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? physical. तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें शरीर का रख रखाव करना है, सभी लोग इस पर ध्यान देते हैं। Then hygiene of emotion. और जहाँ तक मन के स्वास्थ्य की बातें हों वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Develop peace of mind. और अपने मन को अगर खुशहाल बनाना चाहते हो, मन की शांति चाहते हैं, Best way of rest. और ये सबसे अच्छा विश्राम करने का जो तरीका है वो तभी संभव हो सकता है जब आप के मन में शांति हो। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो, दर्द हो, और या डर हो, तो आप ठीक से सो भी नहीं सकते हैं। The best way to also to rest our तो mind. सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने मन को आप सुख समृद्धि में रखें। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि हमारे जो शांति है, मन की शांति है, उसको किस प्रकार की भावना नष्ट कर रही है, किस प्रकार का विचार नष्ट कर रहा है, इसको सोचना चाहिए, इसको पहचानना चाहिए। Antidote of destructive emotion. और जो हमारी प्रेम और करुणा है वो वही जो हमारा क्रोध है, नकारात्मक विचार है, उसका एक प्रतिकारी होता है। आप धर्म को माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन सभी को एक खुशहाल जीवन जीने की आवश्यकता है। सभी लोग चाहते हैं कि खुशहाल दिन गुजरे, वर्ष गुजरे, महीना गुजरे, सप्ताह गुजरे, हर वक्त सभी लोग यही चाहते हैं। Your mind become more peace. तो इसलिए आप जितना ज़्यादा आप करुणामय होंगे उतना ही आपका मन जो है शांति की अवस्था में होगा। हम लोग कोई पूर्व जन्म की या पर जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, Religious belief. या कोई दूसरी परंपरा, कोई धर्म के थोपने की बात नहीं कर रहे हैं। ये साधारण बात है। Peaceful day.
अगर आप एक अच्छा दिन चाहते हो तो अच्छी तरह से आप एक चाहते हो तो इस मन की शांति की आवश्यकता है। That's I usually try to तो इसी का मैं हमेशा प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ clear. और इसको स्पष्ट भी करना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा जो तरीका है अपने मन की शांति को प्राप्त करना चाहते हैं Firstly, we should know तो सबसे पहले destroyer of peace of mind. अपने जो हमारे मन को जो शांति है जो नष्ट करने वाला है उसको पहचानना चाहिए। God bless. Sorry, thank you. So then, you see, in order to peace of mind, just tranquilizer, तो अगर आप मन की शांति चाहते हैं temporary. तो कोई दवा की दौर से औषधि की वजह से अगर हो जाए तो वो नहीं होगी, वो थोड़ी और हो सकता है टेम्परेरी हो, Peace of mind. लेकिन नियमित समय के लिए नहीं हो सकती है। So, not also touching with religion. तो बिना धर्म को छुए In order आप to get अगर सुख शांति चाहते हैं, healthy mind, अच्छे मन को चाहते हैं, अच्छे शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं, Theoretically, every religion is supposed to have its own way of how inner peace can be obtained, can be achieved. अक्सर यही होता है कि सभी धर्मों में व्यवस्था की जाती है कि मन को Means, but of course, मन की शांति कैसे प्राप्त किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। हर एक धर्म में व्यवस्था है। तो प्रार्थना के द्वारा prayer. केवल ये संभव नहीं है कि आप जो चाहें वो प्राप्त कर लें। Going on, certainly I can say that within Islam, तो इस्लाम में ये कह सकता हूँ, मैं there are many देखता people हूँ who do तो बहुत सारे लोग वो जो अपने अनुष्ठान करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, just paying attention only on the outward तो dimension. केवल और केवल बाहरी दुनिया को बारे में सोचते हैं, आंतरिक दुनिया के बारे में नहीं सोचते हैं। इसी वजह से जो सुख शांति है उसको प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। Each religion has to solve certainly within Islam. तो हालांकि आप हर धर्म की अपनी अपनी व्यवस्था है Know that the religion और does मुस्लिम provide the means. मुस्लिम लोगों को भी समझना चाहिए कि जो आपकी जो प्रार्थना इत्यादि के बारे में कही गई हैं वो आंतरिक मन को शुद्ध करने के लिए प्रार्थनाओं के बारे में की गई है, बाहर के लिए नहीं। Discipline of mind. तो प्रश्न यही उठता है कि अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करें। Islam itself, Sufism, तो जैसे कि सूफी परंपरा जो है बहुत ही एक उनकी human beings, एक सहभागिता रहती है कि किस प्रकार से जो आंतरिक सुख को प्राप्त कर सकें। inner peace is always accompanied by compassion and तो आंतरिक जो सुख है वो करुणा से ही संभव हो सकता है, दया से संभव हो सकता है। soul. This is very important. That people are अपने मन का शुद्धिकरण करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। the religion does provide तो सभी धर्मों में ये चीज़ें मिलती हैं। purification of the तो हमें कोशिश यही करना है कि अपने मन और हृदय को now here, शुद्ध करें। according to theistic religion, Muslim, Christian, तो जो ईश्वरवादी परंपरा है, जैसे कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, God, जो कि ईश्वर को मानते हैं, सृष्टिकर्ता को मानते हैं, उनके अनुसार अगर बात करें of God is तो वो कहते हैं कि जो ईश्वर हैं वो करुणा से ओतप्रोत हैं, भरे हुए हैं, our Father, और ईश्वर हमारे एक पिता के रूप में हैं। at least on this planet, और इस दुनिया में रहने वाले जितने भी मानवता है God. या जो भी लोग हैं सबको ईश्वर ने बनाया, एक ही भगवान एक ने बनाया, एक ही पिता ने बनाया, ऐसी मान्यता है। On this planet, we all children of same Father. तो ये मान्यता है कि So that ये Father, तो अगर इस प्रकार के जो so we are children of that kind जो of ईश्वर हैं, So we must first, जो पिता हैं, there is no point तो to kill. तो फिर ये जो मारने का, एक दूसरे को झगड़ा करने का, एक दूसरे को हत्या करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, क्योंकि सभी को आप अगर ईश्वर के लोग मान रहे हैं, ईश्वर के Thinking about one God. संतान मान रहे हैं, तो इसमें फिर झगड़ा हत्या करने की जरूरत ही नहीं है। Islam, मुस्लिम को देखें Muslim, और फिर जो हिंदू को देखें, Hindus, और बहुत सारे जो हिंदू परंपरा को देख लें, जैन में अलग अलग परंपरा है, जैन की परंपरा अलग है, बौद्ध की अलग है। one my close friend, Bishop Tutu,
तो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र बिशप टूटू, we become very, very close तो friends. पिछले कई वर्षों से हम लोग अच्छे मित्र बने हैं। तो हम लोग एक दूसरे की मजाक करते रहते हैं, One एक दूसरे के occasion, साथ साथ Bishop हमेशा Tutu, खेलते हैं। he expressed to me, teasing me, तो एक बार बिशप टूटू ने मेरे ऊपर मजाक go किया, to heaven. तो उन्होंने कहा कि वो तो Go to something different. तो वो कह रहा है कि मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, दलाई लामा शायद नरक जाएंगे, ऐसा उन्होंने मजाक किया। You see, religious, all theistic religion say we all created by one God. तो जो भी ईश्वरवादी परंपरा हैं वो यही कहते हैं कि That way, एक ईश्वर ने बनाया है, हम उसकी संतान हैं। तो अगर ऐसा मानते हैं तो हमको फिर खुशी खुशी रहना चाहिए, सामंजस्य बना के रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही पिता के ईश्वर हैं। तो ये सिद्धांत जो भी ईश्वरवादी परंपरा मानती है बहुत बढ़िया बात है, एक अच्छी बात है, अच्छा विचार है। utilize firstly religious main sort of concept is loving kindness. तो जो धर्मों के जहाँ विचार है वो प्रेम और करुणा है, उसको मानना चाहिए। Since we all created by one God infinite love. तो जो लोग ईश्वरवादी को परंपरा को मानते हैं कि हमें ईश्वर ने बनाया है, हमारे एक ही जो पिता हैं, तो हम सभी एक पिता के बच्चे हैं, तो हमको एक सुख समृद्धि से रहना चाहिए, ये विचार करने की आवश्यकता है। Well, I think I agree with you. I mean, totally agree with तो what मैं you, आपसे सहमत हूँ, जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। perhaps through interactions, through communication. तो शायद इस प्रकार से संवाद से, Muslims in particular here, तो मुस्लिम और बौद्ध धर्म के इस प्रकार से संवाद करके, तो दूसरे धर्मों के लोगों के सदस्यों के साथ भी looking for now is हम ऐसा कर सकते हैं। और अभी हम ये देख रहे हैं कि जो समानताएं that bring us आए, and certainly compassion and mercy would be जो करुणा और जो दया है वो सामान्य बात है। अगर हम सभी लोग करुणा को दिखाएं, मैत्री दिखाएं, तो इस दुनिया को एक अच्छा विश्व बना सकते हैं। तो समस्याएं हैं, उसके रोड़े भी आते हैं। तो जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देखें कि कभी कभी लोग एक ज़्यादा कट्टरपन भी आता है, तो कट्टरवादिता जो है, तो वो भी ये भी एक प्रकार से गलत बात है। We are today living in a more interactive world. तो आज अगर हम देखें कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे समाज में रहते हैं, पड़ोसी साथ होते हैं, जो नेता लोग साथ होते हैं, अधिकारी साथ होते हैं, तो एक दूसरे से हम सब जुड़े हुए हैं। तो इसलिए कोशिश यही होना चाहिए कि हम दूसरों को कैसे देखें, दूसरों के धर्मों को कैसे समझें। Escape from that. You cannot run away. हम इन चीज़ों से बच नहीं सकते हैं, इनसे दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये समस्याएं हैं, हमारे लिए चुनौती भी है। Important is we take the essence of all religion. तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सभी धर्मों को सार को समझना चाहिए। मैंने पूर्व में भी कहा कि प्रेम और करुणा, मैत्री, यही सभी धर्मों का सार है। Different philosophical thinking. तो उसमें अलग अलग धार्मिक विचारों के हिसाब से उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में दवा को देखें कि दवाओं की बहुत सारी वैरायटी हैं, अलग अलग तरीके की दवाएं हैं, और सभी का यही प्रयास, सभी दवाओं का यही है कि वह इस शरीर को स्वस्थ करें। और सभी धर्मों में जो मन को किस प्रकार से शांत कर सकें, ये सभी धर्मों में व्याख्या की जाती है, उसकी व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके अपने अपने दर्शन होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो इससे जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि बिशप टूटू हमसे मजाक करते हैं, तो वो ठीक है, अपने अपने धर्म के अनुसार है। I think among the Muslim, Shia and Sunni and Sufi. तो जैसे कि शिया और सुन्नी और सूफी पंथ, तो अलग अलग आपकी परंपराएं हैं। तो बौद्ध धर्म में भी हमारी तो पाली परंपरा है, संस्कृत परंपरा है, और विदिन जो संस्कृत परंपरा उसमें भी और अलग अलग जो सिद्धांत हैं, अलग अलग दृष्टांत जो दर्शन हैं।
तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी सकारात्मक विचार कैसे हमारे अंदर आएँ इसके लिए बने हैं। I think they useful to widen our eye. और ये हमारी आंखें खोलने के लिए हैं अपने और एक बड़े रूप में देखने के लिए हैं। ये नहीं कि आप एकांकी रहें, एक ही चीज़ को एक ही दिशा में रहें, इसलिए नहीं है शायद। Now, for example, religion, just one religion. तो अगर हम कहते हैं बस एक ही धर्म होना चाहिए तो एक ही तरफ से देखें, ऐसा नहीं है। हमें आंखें खोलने की आवश्यकता है This same planet, क्योंकि हम सभी इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस ग्रह पर रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। why these happen? Because of पिछले कई हजारों वर्षों तक लोग मानता कि धर्म हैं, लोग मानते आ रहे हैं। क्यों ऐसे हैं? कि लोगों की अपनी अपनी आवश्यकता है। as I mentioned earlier, it's like medicine. Same purpose, variety जैसा कि उदाहरण के रूप में medicine, दवा को लीजिए, useful, very good. तो अलग अलग दवाएं इसलिए हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग बीमारियां हैं। We should realize तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए carry same कि जो सभी धर्म हैं वो लगभग एक ही संदेश लेके चलते हैं। सबका संदेश एक ही है philosophy. और उसके लिए अलग अलग दर्शन हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग से अभ्यास हैं। ये समझना चाहिए। Then we जब हम इनको देखेंगे appreciation, तब एक दूसरे की हम प्रशंसा करेंगे variety. और तब हम समझ सकेंगे कि बहुत सारे धर्मों को जो धर्म हैं तो उनके अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग खासियत है। So therefore, firstly, we should recognize तो सबसे पहली बात कि जो प्रेम और करुणा है उसको पहचानना चाहिए और ऐसा इस रूप में पहचानना चाहिए कि हमारे जीवन के लिए जो हम मनुष्य लोग हैं, जो जीवित लोग हैं और ख़ास करके मानव जगत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। human being. तो आज के समय में जो झगड़े होते हैं वो उसमें इस वजह से होते हैं कि भाई जो एक बंधुत्व की भावना है वो नष्ट हो गई, इस वजह से एक दूसरे से जड़ते हैं। Recognize all religion, same message. तो पहचानना चाहिए कि सभी धर्मों के एक ही संदेश होते हैं, समान संदेश होते हैं और इनको पहचानना चाहिए। मनुष्यों की अलग अलग विभिन्नताएं उनके बारे में समझना चाहिए। लोगों की अलग अलग सोच है, उस सोच को समझना चाहिए। Necessary. तो ये विभिन्न धर्म है, इस प्रकार से लाभदायक होते हैं। Johannes, there's now a question time. The number of people want to ask questions to you. Okay, and then, okay. to both of you. Yes, some occasion, some question. Okay. First question. Thank you, Your Holiness and Professor. Through the discussion and interaction, I could see the points for the common ground of compassion and mercy. तो प्रोफेसर और हिजोलनेस दोनों को धन्यवाद। आपने बहुत सारे जो समानताएं बताई वो आपसे सुनी। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं। Our first question comes from the National Palace of Malaysia, Datuk Paduka Azwan Effendi Zaira. Please proceed with the question, Datuk. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good day. Tashi Dalek to Your Holiness the Dalai Lama, Emeritus Professor Dr. Osman तो Bakar. परम पावन जी को नमस्कार और प्रोफेसर बकार को It is an honor for नमस्कार। me to be given the opportunity to pose तो the मुझे first जो question. अवसर मिला और पहला प्रश्न पूछने का अवसर मिला, There are always some who तो हर एक धर्म में interpreted the religion तो differently. हर एक धर्म में कुछ न कुछ गलत तरीके से उसकी व्याख्या कर दी जाती है और उनको कट्टरवाद कहते हैं। और इस प्रकार के जो कट्टरपन हमेशा धर्म को एक प्रकार से गलत छाप छोड़ देते हैं As a pretext to violence or और इसकी वजह से हत्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो मेरा प्रश्न बनता है, क्या ये अच्छा होगा कि हमें पुनः जो धर्म के लोग हैं, जो कट्टरवादी हैं harsh approach और उनके साथ में एक प्रकार से हमें दबाव बनाना चाहिए, उनके साथ प्रतिशोध करना चाहिए, क्या करना As चाहिए? I mentioned already, problem between Shia and Sunni. तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि शिया और सुन्नी के बीच में Never heard. जो झगड़े हैं वो इस भारत देश में कभी नहीं हुए, अब कभी मैंने नहीं सुने। Some other country, there's a killing between Shia and Sunni. और दूसरे देशों में तो शिया और सुन्नी की हत्याएं होती हैं, झगड़े होते हैं। Now we have various university
technology, तो आज के समय में बहुत सारी तकनीक है different places और एक दूसरी जगह पर जा भी सकते हैं, आसानी से चले जाते हैं। make known each other. तो कोशिश यही करना चाहिए कि एक दूसरे से दोस्ती बनाएं। दोस्ती बनाना महत्वपूर्ण है। Indian Muslim, तो उदाहरण के रूप में जैसे कि एक भारतीय मुसलमान जो शिया और सुन्नी they already know बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। some country, जो अरब के कुछ देश हैं, they are also the childhood, just only one religion. और उनका बचपन से ही एक ही या जन्म से ही एक ही धर्म होता है, तो फिर भी एक दूसरे में दूरी महसूस करते हैं। We must utilize the news or technology, and if sufficient money, then visit तो आपके पास अगर तकनीक है और पैसे भी अगर हों and learn. तो एक दूसरे के देश में जाना चाहिए, एक दूसरे के पास जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। My own experience तो ये मेरा अपना अनुभव है। in Tibet, तो जब मैं तिब्बत में था only Buddhism. तो केवल बौद्ध धर्म के बारे में सोचता था। तो उसके बाद जब मैं भारत आ गया, Meeting with उसके बाद बहुत सारे और अलग अलग परंपराओं के लोगों से मिला, तो उनके साथ साथ मेरी एक प्रकार से दोस्ती बनी, उनके लोगों को समझा। the same message. और अलग अलग दर्शन है, लेकिन जहाँ तक संदेश की बात हो वो समान है So different और बहुत ही एक कारगर भी है। within Buddhism, as I briefly mentioned, तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि अलग अलग दर्शन होते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। there are तो बौद्ध धर्म में भी देखें कि भगवान बुद्ध के समय में भी देखें तो भगवान बुद्ध के भी देखें कि जो उनके निर्माण के बाद लगभग different. 18 निकाय बन गए थे। Then eventually Nalendra developed, and 4 different schools, फिर उसके बाद जो नालंदा परंपरा में देखें तो उसमें भी 4 परंपराएं बन गई। different views. तो उनके अपने अपने दर्शन, अलग अलग जो सोच विचार, Pray to Buddha. लेकिन सभी भगवान बुद्ध को मानते हैं। सभी एक ही जो शास्त्रा उनको मानते हैं, So you see, और सभी लोग प्रेम और करुणा की बात करते हैं। तो इसी प्रकार से आज के समय में ये ज़रूरत है कि जो संबंध है वो नज़दीकी होना चाहिए, pilgrimage to different और religious. जो अलग अलग धर्म परंपराओं के स्थान हैं, भ्रमण के स्थान हैं, वहाँ जाना चाहिए। Very useful. तो मैं ये अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे हम लोगों को एकांकी नहीं रहना है, More contact with, एक दूसरे से संबंध बना के रहने की आवश्यकता है। like that. For- I think for Muslims within Islam itself, the Muslims need to differentiate between misinterpretation तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि क्या हमें गलत बताया जा रहा है, ये खुद सोचना चाहिए। Then the people who are in the know on religion, they should try to explain what is the correct understanding. तो फिर जो धार्मिक नेता हैं उनको भी कोशिश करना चाहिए कि सही रास्ता क्या है। In other words, the plurality of interpretation. So Muslims should learn the art, the adab of having different opinions. I think that is important. We need to respect the other's opinion. तो दूसरे के सम्मान, जो विचार, उनका सम्मान करना चाहिए और विचार भी करना चाहिए। Extremism Thalat hua. that leads to violence. Thala. Extremism, not every form of extremism. In terms तो हर बार जो है कि हमें कट्टरवादी नहीं रहना चाहिए, then of course, I mean the state और इतने भी कट्टरवादी नहीं होना चाहिए कि जो हिंसाएं प्रारंभ हो जाएं। the issue. But the point is, we should avoid harsh action. We should avoid from taking harsh action. तो ये कह रहे हैं कि जो कठोर एक प्रकार से कदम है वो उठाने से बचना चाहिए। Thank you. The next question. Thank you, Your Holiness and Professor. We can see that both distinguished speakers have stated some common values on this question. Thank you. Moving on to Ms. Jayanti Kwan from Sek Kya Eng Temple, Malacca. She will pose the second question. Ms. तो Jayanti. सेकिया इन्हें टेम्पल से जो जयंती कौन का प्रश्न है, तो इनका प्रश्न है, तो जो करुणा और दया की
जो मूल्य हैं वो अपने दैनिक जीवन में कैसे उनको लागू कर सकें और फिर अपने बच्चों को कैसे बता सकें। Main thing is not as a religion, तो मुख्य बात ये समझना चाहिए social animal. कि इसको धर्म के रूप में न लेकर के एक सामाजिक प्राणी के रूप में आप लें। As I already mentioned, as soon as born, तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही जब बच्चे जब होते हैं, जब हम लोग होते हैं, जब जन्म लेते हैं तो माँ बाप की करुणा पर आधारित I रहते हैं। always was telling children, 6-7-year-old children, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 5-6-7 साल के बच्चे हैं, तो वो उनको हमारी क्या राष्ट्रीयता है, क्या रंग है, क्या धर्म है, क्या जाति है, इस पर कोई उनका कभी भी मन नहीं होता, कभी भी वो सोचते भी नहीं है। not talking. जैसे ही वो जब स्कूल चले जाते हैं, जब ये साथ साथ खेलते हैं, इनको मतलब नहीं होता है। फिर उसके बाद जब हमें शिक्षा जो दी जाती है, Differences. वो स्कूल में जाने के बाद अलग अलग जो अंतर हैं वो बताए जाते हैं, अलग धर्म बताए जाते हैं, अलग जाति, अलग व्यवस्था, ऐसे लोगों बताए जाते हैं। Modern education, unfortunately, not talking. और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो आंतरिक मूल्यों के बारे में नहीं बताती है। Very alive, loving kindness, and तो बच्चे जब छोटे होते हैं तब उस समय तो उनके अंदर प्रेम करुणा के विचार रहते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लेकिन जब स्कूल में चले जाते हैं, जब शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो फिर इनके बारे में और ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, you see the differences, ना तो इसके अंतर के बारे में व्याख्या करते हैं, न लोग बताते हैं। religion, different nationality. So now I have strong feeling in our education system. तो जहाँ तक शिक्षा जो पद्धति है उसके बारे में अक्सर यही कहता हूँ कि इसको एक अपने एकेडमिक विषय के रूप में लेना चाहिए, इसको धार्मिक रूप में नहीं समझना चाहिए। Hygiene of physical, जो जिस प्रकार से शरीर को बनाने की आवश्यकता है, जिसको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कार्य करते हैं, उसी प्रकार से we can, in education field, we should introduce about also the method how to develop peace of mind and तो हमें अपने जो मन है उसको स्वस्थ कैसे बनाया जा सके, अपने शरीर को अच्छा कैसे बनाया जा सके, also the इसकी कोशिश करनी चाहिए। method to reduce और किस प्रकार से हमारे जो क्रोध है, भय है, इसको कैसे कम किया जा सके, और उसके बजाय जो प्रेम करना, मैत्री, इसको कैसे बढ़ाया जाए, ये कोशिश करना चाहिए। take also their also the advice. तो कभी कभी एक दूसरे से सीखना चाहिए, एक दूसरे से संवाद करना चाहिए। Today, 21st century, I think we already have lot of sort of contact, lot of sort of communication. तो आज हम देखें कि हमारे लिए बहुत सारे कम्युनिकेट जो एक दूसरे से संवाद करने के, एक दूसरे से बातचीत करने के बहुत सारे तरीके हैं। प्राचीन समय जैसे नहीं है। Their childhood already, you see, और भारत के जो शिया सुन्नी एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। in Afghanistan or some अफगानिस्तान इत्यादि देशों में देखें, वो भी अपने एक दूसरे को समझते हैं, really isolated. So लेकिन एक दूसरे से अलग रहते हैं वहाँ के लोग। और जो शिया सुन्नी की बात देखें तो वो एक दूसरे से अलग थलग जैसे होते हैं। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, communication. और एक दूसरे से बातचीत। This is my response to Ms. Jayanti. Generally speaking, I would say that, of course, religion and tradition provide the guidelines. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो I would give you an example धर्म और here. संस्कृति है, I'll give you an example from परंपरा है, with respect to kindness to parents. तो जो I say charity begins at home. कहते हैं कि जो दान की परंपरा है घर से प्रारंभ होती है। Just quote this from the Quran. Say, your तो मैं Lord कुरान has से कहना decreed चाहता हूँ that you worship none but Him, and that you be kind to parents, whether one or both of them attain old age in your life. Say not to them words of contempt, nor repel them, but तो जहाँ जो बड़े बूढ़े रहते हैं तो उनको आपको घर से नहीं निकालना है, उनका अपमान नहीं करना है, the wing of humility. और तो उनको एक मानवीयता के साथ My रखें। Lord,
bestow on them your mercy, rahmah. तो कह रहे हैं कि मैं आपके ये भगवान मैं आपके करुणा पर रहमत पर जीवित हूँ। और तो इसलिए जैसा कि आपने मेरे बचपन में मेरे ऊपर करुणा रखी वैसे ही अपने बुढ़ापे भी रखें। इसलिए अपने जो माँ बाप हैं उनके लिए हमेशा आप एक सम्मान करें, तो तभी जा कर के आपके अंदर आ सकते हैं। Yes, next कैसे question. उसा? Quran ne di tha. Okay. हाँ. Thank you, Professor and Your Holiness. Now, moving on to our next question from our respected questioner, Mr. Taufik Abdul Khalid. तो इसके बाद अगला क्वेश्चन Your question, तौफीक खालिद की तरफ से। Yes, Assalamu alaikum and salutations. तो सलाम वालेकुम और परम पावन जी को प्रणाम। My question is regarding the human ego. तो मेरा जो प्रश्न है कि मानव का Buddhism जो घमंड है, तो जो बौद्ध धर्म के अनुसार हिंदू धर्म के अनुसार जो घमंड है इनमें इसको कैसे कम किया जा सकता है? want to do good. We want to be compassionate. क्योंकि हम सभी लोग अच्छा बनना चाहते हैं और दूसरों को मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो घमंड है वो रोक देता है। तो इसको कैसे कम करना चाहिए? दोनों परंपराएं इसके बारे में क्या कहते हैं? 그래. 어제 शुरू कर 미션 선지고 이줄로 맞아. ma kie ta di che. I think firstly, I think we should make distinction. Attachment तो and loving kindness. जो करुणा है Attachment, और आसक्ति इसमें अंतर रखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। we and they. जहाँ तृष्णा होगी यहाँ वहाँ पर मैं और वह की भावना होगी, मैं और पर की भावना होगी। See, they say the destructive emotion very much based on appearances. That तो जो actually appearances and the reality big वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं, जिन चीज़ों को देखते हैं और जो वास्तविकता होती है उसमें बहुत बड़ा अंतर होते हैं। दिखने में कुछ अलग होते हैं और सत्यता अलग होती है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार भी यही व्यवस्था है, हमारे दर्शन के अनुसार भी, जो माध्यमिक दर्शनों के अनुसार भी यही व्यवस्था है। based on appearances. और तो जो विनाशकारी जो भावनाएं होती हैं वो ज़्यादातर बाहरी रूप से देखने से जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उस हिसाब से होते हैं। But deeper level. See, the other और इन चीज़ों को हमें गहनता से और गहराई से समझना चाहिए। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है, तो आप जहाँ पर लगाव होता है वहाँ पर एक प्रकार से ईर्ष्या होती है, तो उसको हम अंतर बहुत ज़्यादा अंतर कर दो, उसमें समान रूप से नहीं देख पाते हैं। genuine sense अगर आप समान रूप से देखोगे तो फिर उनके भलाई के लिए हम सोचेंगे, उनके हित के लिए हम सोचे हैं। तो आप देखें कि इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और हम सभी को एक साथ रहने की आवश्यकता है। पूर्व के समय में जब पहले देखें तो पूज्य ये उत्तरी है, पूर्वी है, पश्चिमी है, एक दूसरे से अलग अलग रहते थे। लेकिन आज के समय में देखें कि पूरा विश्व एक घर बना हुआ है, हमें साथ साथ रहना है, एक दूसरे के नज़दीक रहना है। तो इस सत्यता के साथ develop a sense of oneness. तो इसलिए हमें जो 7 अरब के आसपास लोग हैं उनको एक रूपता में देखना चाहिए, एकता के रूप में देखना चाहिए। My nation, I'm Asian, I'm Tibetan, you like तो अगर आप मैं कहूँ कि मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र, मैं कहूँ कि मैं तिब्बती और आप कहें कि मैं मलेशियन हूँ, मिडिल ईस्ट का हूँ, एशिया का हूँ, but you see, too much sort of differences. तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा अंतर आप करोगे तो ठीक नहीं रहता है। Now, outdated. तो ये जो सोच है ये पुरानी सोच है, गुजरे हुए समय की सोच है। अभी हमें मानवता के बारे में सोचना है, विश्व के बारे में सोचना है। As I already mentioned, you see more contact with also the other people. और जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलोगे, अलग अलग लोग, अलग अलग देशों के, अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलोगे, अलग अलग उनके इतिहास के लोगों से मिलोगे, अलग सभ्यताओं से मिलोगे, तो उनसे क्यों जितना ज़्यादा लोगों से मिलोगे इतनी ज़्यादा आपको जानकारी होगी। Because of small differences, we isolate ourselves. और थोड़े थोड़े जब अंतर आ जाते हैं तो हम अब लोग एक दूसरे अपने आप में अलग कर लेते हैं, फिर मैं और पर इस प्रकार की भावना आ जाती है। Personal contact
and education. तो इसलिए ये मैं शिक्षा और जहाँ तक व्यक्तिगत जो एक संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। As far as Islam is concerned, the approach is through the Sharia. तो इस्लाम में कहा जा रहा है कि आपके व्यवहार के द्वारा ये संभव हो सकते हैं, तो चर्या का अभ्यास करना चाहिए। तो इस्लाम में जो 5 पिलर कहे गए हैं, जैसे प्रेयर कही गई, Prayer is a means of weakening the ego. तो प्रेयर से हमारे जो घमंड है वो कम होता है, How to deflate the ego, तो उसको कैसे हटा सकते in a हैं sense to control it. और इसको अपने Through prayer, because through prayer, provided that we don't just concentrate on the externalities, क्योंकि but also on the spirit. तो ऐसा ही नहीं है कि प्रार्थना करने से बाहरी दुनिया में हम जुड़ें, इससे आंतरिक दुनिया में भी जुड़ जाते That हैं। through that prayer, we should be able to weaken our और and जो हमारी a part of our प्रार्थना है उसके द्वारा घमंड भी कम होते हैं। And number 2 is through fasting. तो दूसरी बात है उपवास रखते हैं, तो उपवास करने से भी घमंड कम होता है। Again, the question of are we fulfilling the spirit of fasting or not, or just simply तो वास्तव में हम सही fasting of जो the heart, the fasting of जो उपवास रख रहे हैं कि नहीं, वो जानने की ज़रूरत है कि केवल हम पेट को भूखा रख रहे हैं, ये चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। the zakat, which is the तो ज़कात, for example, the tax, certainly that also will help, because to let part of our personal property, तो ज़कात में दान इत्यादि देना, from our personal property, कि अपनी जो धन है उसमें से बांटना, help us in को जो हमारी प्रॉपर्टी है दूसरों को लाभ हो दे सकते हैं, तो ये भी घमंड को कम करता है। ballooning of the ego. So Sharia is a means to control the ego. But let me say now one more thing. But on top of the performing the Sharia, तो चर्या को करने के से पूर्व the techniques of तो the इसके लिए जो शुद्धिकरण के of the heart, जो भी विचार हैं उसको शुद्ध करने के लिए आवश्यकता रहती है। तो जो लोग जो धार्मिक मार्ग में जुड़े हैं, remember the divine name, to remember God, तो वो अपने ईश्वर का नाम लेना चाहते हैं, अलग अलग प्रार्थनाएं करते हैं, ego. और वो ही हमारी जो घमंड है उसको कंट्रोल करता है, Thank ये you, इनका Your मानना Honor है। and Professor. Now we go to the last 2 questions. तो अब अंतिम 2 प्रश्न, तो आरिफ सोबान Institute of Islamic Thought and Civilization, ISTAC. He will pose the next question. Mr. Arif, please. तो मिस्टर आरिफ का प्रश्न। Alright, Assalamu alaikum and a very good morning, good afternoon to Your Holiness, as well as Professor Osman and everyone present here today. Okay, I think some of the questions that the question that I would like to ask has been answered, but if I can actually rephrase it, inshallah. तो प्रश्न हालांकि जो है What is the एक प्रकार से छूट, methods that Muslims and Buddhists तो मैं can ये learn पूछना from चाहता each हूँ other कि मुस्लिम और जो बौद्ध लोग एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं, each belief system? वो खासकर तब जब अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म जब और बौद्ध धर्म जो अपनी बात को रखना चाहें, दुनिया को बताना चाहें, तो इनमें क्या समानता होना चाहिए, और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों में क्या समानता होना चाहिए। Definitely love to hear from you, Your Holiness. Thank you so much. 그래서 어디 된다 또 가지도 남번이 와. Question? As I already mentioned, when we find differences, then we should think the main goal. तो जैसा कि मैंने कहा कि जब आप अंतर देखें तो उस समय आप लक्ष्य को देखना चाहिए कि दोनों का लक्ष्य क्या है। तो दोनों का लक्ष्य है कि मनुष्य की जो करुणा है, मैत्री, उसको आपको बढ़ाना है। For that, that's I think और emotional. जब आप इसको देखेंगे तो ये भावनात्मक भाग होता है, We have this human intellect. और हमारे पास जो एक प्रकार से देखे जाए बुद्धि है, एक समझ है। These basic तो इस प्रकार के जो विचार है, जो हमारे मन, जो नैतिक मूल्य हैं, स्वाभाविक मूल्य हैं, इनको बढ़ाने की आवश्यकता है। और फिर जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे variety, तो इसमें बहुत सारी जो विभिन्नताएं मिलेंगी। different time, तो विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग उनकी जीवन शैली,
अलग अलग उनके सोच विचार के लोग, तो ऐसे लोगों से जब आप मिलोगे approach तो इसलिए हमें अलग अलग अप्रोच की आवश्यकता है। जो अपने मूल्यों को बढ़ाना चाहते हो तो अलग अलग तरीके अपनाने की आवश्यकता रहती है। like I think like medicine जैसे कि उदाहरण के रूप में आप दवा को देखो to get healthy body, तो but for same और goal, एक दवा का उद्देश्य यही होता है कि आपके जो शरीर को ठीक रखे। circumstances we use different variety of medicine. और फिर अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरीके की दवाइयाँ का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से अपने मन को सुदृढ़ करने के लिए, सुखी रखने के लिए अलग अलग धर्मों की आवश्यकता है। This is the same message. और सभी एक प्रकार के जो संदेश हैं वो लेकर के चलते हैं। 주로 편중 무슬림 당한테 딩이 바로 파서 트렌치. So I think they emotionally all carry the same message of loving तो भावनात्मक रूप से देखा जाए तो सभी धर्म एक ही संदेश लेकर के चलते हैं। believer, non-believer. चाहे धर्म को मानते हो या न मानते हो, किस धर्म को मानते हो किसको न मानते हो, तो लगभग सभी का समान संदेश रहता है। Need this loving kindness. हमको ये जो प्रेम और करुणा के संदेश हैं इनको मानने की ज़रूरत है, इनको अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के अपने अपने मानसिक स्थिति होती है, मानसिक सोच होती है, तो उसी हिसाब से उनको उपयोग करते हैं। So there are differences. Now, for example, the like within Buddhism, तो बौद्ध धर्म में भी देखें कि जो पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा, Sanskrit tradition, you see there are different philosophical views. You see different. और इन दोनों में भी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं। Study all these different tradition is very important. तो इनको समझना, इन परंपराओं को समझना, एक दूसरे को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी आँख कान बंद करके बैठ जाएं और एक चीज़ कोई मानते रहें तो इसका मतलब आपकी जो सोच है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी। Different tradition, different. इसलिए अलग अलग दर्शनों को, अलग अलग परंपराओं को पढ़ना चाहिए। Buddhist, you see, it is much useful. Meet and discuss. तो इनके लोगों के साथ मिलो, एक दूसरे से बातचीत करो, क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। What is the purpose? तो अंतर जब आते हैं तो अंतर क्यों आते हैं, उद्देश्य क्या है, ये जानना चाहिए। As I mentioned earlier, I have many good friends Muslim. तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, क्रिश्चियन मित्र हैं, और जो पारसी हैं, यहूदी हैं, बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे मित्र हैं। Different philosophy. तो उनके अलग अलग दर्शन हैं, अलग अलग धर्म हैं, लेकिन विचार लगभग मिलते हैं, समान I हैं। can only affirm what Your Holiness has said. The best way is through dialogue. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो संवाद के द्वारा ये संभव हो सकते हैं, सामाजिक जो कार्य हैं उससे ही अच्छी अप्रोच हो सकती है। We now come to our final question. तो आज का अंतिम प्रश्न है, The forum discussed today the topic compassion and mercy as the common values between Islam and Buddhism. Could we seek Your Holiness and Professor Osman's advice on our last question on how we can put compassion and mercy into action? तो अंत में ये है कि जो करुणा और दया है इसको अपने जो मित्र है उसके साथ कैसे रख, उसको कैसे, उस पर कैसे दिखा सकते हैं। When, as soon as we born, our mother take care. तो जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप, हमारे खास करके माँ हमारा देख रेख करते हैं। Attachment there. तो वहाँ पर हालांकि लगाव रहता है, आसक्ति रहती है, लेकिन मुख्य रूप से तो प्रेम और करुणा की वजह से रख रखाव करते हैं, लालन पालन करते हैं। Biologically, you see, develop taking full care of their children, their child. और वे अपने बच्चे का पूरी अच्छी तरह से मन से उसके पालन करते हैं। तो उसकी वजह है, इसकी वजह क्या है? 7 billion human beings. हम लोग 7 अरब के आसपास इस दुनिया में रहते हैं, इस ग्रह पर रहते हैं।
take care each other. हमें एक दूसरे के ध्यान देने की आवश्यकता है, एक दूसरे का एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। Oneness of और seven billion. यही विचार होना चाहिए कि 7 अरब के आसपास लोग हम सभी एक हैं, एक Happy life, हम सभी सुख चाहते हैं, सभी अपने सफल जीवन को चाहते हैं because of the social animal, और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते naturally और ये स्वाभाविक बात है important. और महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की मदद करना महत्वपूर्ण है, एक दूसरे को सहयोग करना ज़रूरत है। My number one commitment, तो इसलिए जो मेरी पहली प्रतिबद्धता है, oneness of seven. जो 7 अरब के आसपास लोग हैं उन सभी में एकता बने, सभी एक साथ रहें। Religion, different race, तो फिर उसके बाद अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र हैं, ये द्वितीय स्तर के भाग होते हैं। सबसे पहले तो हम मनुष्य हैं। we passing through a remote area, तो जब हम लोग किसी गांव से या एक प्रकार से दूर दराज एरिया से जा रहे हों, we उस saw समय one human being there, उस समय कोई दिक्कत हो रही हो, तो पहले हम लोग फिर उस समय फिर हम जब कभी मुसीबत में हों I may तो मुसीबत में पड़ते ही तुरंत हमारे दिमाग में आता है, अरे वो देखो आदमी है, उस आदमी से मुझे कोई, उस व्यक्ति से मुझे कोई मदद मिल सकती है। we never sorrow तो उस समय हम ये नहीं सोचते हैं, हमारे मन में ये नहीं आती है कि ये बंदा जो है what a national कि इसकी राष्ट्र क्या है, किस जगह से है, किस धर्म से है, क्या रंग है, ये नहीं सोचते। हमें उस समय आवश्यकता जो है कि मदद की होती है, कि मनुष्य है, ये मनुष्य मेरी मदद कर सकता है। 7 billion human being, we should develop the sense of oneness तो इसीलिए जो 7 अरब के आसपास लोग हैं, इनके साथ साथ एकता का भाव होना and चाहिए taking care of entire 7 billion human being. और पूरे जो 7 अरब के आसपास लोग हैं उनके ध्यान रखें। Religious reason, but from today, according to reality, through education, और ये शिक्षा के द्वारा संभव हो सकता है oneness of 7 billion human और 7 अरब के आसपास लोग शिक्षा के माध्यम से एक साथ जुड़ सकते हैं। Okay, let me conclude also by I think- giving my answer to the question. Okay. Hello? I think Yes, you- I think half joke, you say, different तो मैं जो आधा मजाक समझिए मेरी बात को, तो लोगों के अलग अलग चेहरे होते हैं, अलग अलग सोच होते हैं। यहाँ तक कि एक ही व्यक्ति जब जो बचपन में होता है उस समय उसका अलग चेहरा दिखता है, उस समय अलग सोच होती है। within one day, morning, you have तो एक दिन में ही देखा कि सुबह में अलग विचार होते हैं, शाम को अलग विचार आ जाते हैं। no reason, you see, to fight or say, morning, you तो have some idea. तो ऐसा नहीं है, आपस में अपने विचारों के में झगड़ने की आवश्यकता नहीं कि सुबह हमारे विचार ये थे, शाम को ये विचार थे। Morning, this idea, so wrong. तो I have to destroy that person. तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो सुबह तो आपके अंदर विचार आ रहे हैं, शाम को अलग आ रहा है, तो सुबह इसमें विचार ये आ रहे थे तो इसको मुझे ख़त्म करना, कैसे करोगे? व्यक्ति तो वही है। तो उसी प्रकार से इस दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग उनके दिमाग हैं, अलग परिस्थितियाँ होती हैं, तो वो कैसे खराब कैसे हो सकते Easily हैं? understand. We are basically same human being. तो ये समझ सकते हैं कि हम सभी लोग मनुष्य हैं। I can approach. अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमें उसके प्रति जाना चाहिए, अप्रोच करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। Very close each other. और आज के समय में पूरा विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, नज़दीक है, As an advantage, तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। you see the source of conflict. No. झगड़े करने के बजाय इनसे लाभ देना चाहिए, सीखना चाहिए। Nation, each group, प्राचीन समय में तो अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोग रहते हैं थे, global economy. लेकिन आज के समय में देखें कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो भी सब पर समान छाप जाती है। और आज आप देखो कि कोरोना की जो बीमारी है You see, that also वो भी सभी पर एक प्रकार से पड़ी हुई है, तो वो भी सभी मानव जाति को साथ लेकर के आ रही है। एक दूसरे से मिलने की आवश्यकता है, एक दूसरे को सहयोग की आवश्यकता है। really, you see, sense of oneness. तो वास्तव में आज के समय में एक जो एकता की आवश्यकता है, एक दूसरे को मदद करने की आवश्यकता है, और एक अच्छी विचार होना चाहिए, अच्छी सोच विचार से होना चाहिए। Mentioned, if I
if I still feel here, तो मैं अक्सर कहता हूँ I'm just Tibetan. अगर मैं यही मान के रहता कि मैं तिब्बती Lonely. हूँ, अकेला हूँ, तो फिर मुझे एकांकी लगता, मैं अकेला रह जाता। तो मैं भी मनुष्य हूँ। तो भारत में भी इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे भारतीय लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं। And for me, all those great masters, तो मैं अपना उदाहरण दूँ all are Indian. को जो जितने भी बड़े बड़े लोग जो हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, वो भी भारतीय थे। Great master, मास्टर्स लोग भी भारत के थे। Nagarjuna, जैसे नागार्जुन को देखें, ये भी भारतीय थे। Aryadeva, all these Indian. आर्यदेव इत्यादि सारे के सारे जो भारतीय थे। So, and these great master of Nalanda, because I mean there are already different philosophical sort of school of thought there. तो नालंदा परंपरा के जो बहुत सारे जो आचार्य हुए, अलग अलग विचारधाराएं थीं और एक दूसरे से उन्होंने सीखा, एक दूसरे से संवाद करते थे, एकांकी नहीं रहते थे। तो इसलिए बहुत तो जो जितने ज़्यादा धर्म होंगे, उतने ज़्यादा दर्शन होंगे, उतने ज़्यादा लोगों के लाभदायक होंगे, उतने ज़्यादा उससे ज्ञान मिलेगा, उतने सीखने को मिलेगा। Okay, thank you. Just let me give my response. I have 3 suggestions. तो मैं इस क्वेश्चन पर 3 बातें कहना चाहता हूँ। Educate ourselves. तो पहली तो अपने आप में की शिक्षा प्राप्त करें, Become more compassionate. और जिससे कि आप ज़्यादा करुणामय हो सकें, दयावान हो सकें। Compassion and mercy in our being, we will not be able to put into action. Suggestion number 2, let us empower the agenda to help the orphans. दूसरी बात, जो गरीब हैं, जो बेघर हैं, उनको मदद करें। Let us think more about the common good. तीसरी बात है जो सामान्य सच अच्छाइयाँ हैं, Common good. एक दूसरे के जो समान लक्ष्य हैं उनके बारे में काम करें। Alhamdulillah. Thank you, Professor and Your Holiness, for the enlightenment through the तो presentation. इसलिए आता है अंत में परम पावन जी और प्रोफेसर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। On behalf of Muslim Youth Movement Malaysia, ABIM, तो मुस्लिम I would like to extend जो our utmost gratitude आबीम की to तरफ Your से Holiness and परम पावन जी और प्रोफेसर and also बकार our VIP guests, Tan और Sri हमारे Alba, जो मित्र Yusuf, Mr. Ahmad Azam Abdul Rahman, and और all जिन्होंने प्रश्न जो किए हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं forum. और जो भी सुन रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Our brother Casey, to give the closing. तो अब अंतिम के लिए जो गिशला से अनुरोध करना चाहता हूँ। And Professor Dato Osman Baka for your sharing. माफ़ करना है, तो अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप Benefited from जो the dialogue. That is धन्यवाद ज्ञापित compassion करें। and mercy तो आपके संवाद से हम लोगों को फ़ायदा हुआ, Buddhist. जो बौद्ध धर्म और Here इस्लाम I धर्म have a में। short summary for today, advice from Your Holiness and तो आपने जो आज जो एडवाइस दी है, Baka dialogue today. तो यहाँ पे संक्षेप में एक संक्षेप में बनाया। Are the जो करुणा और inherent दया है, quality of human. तो ये मनुष्यों की एक मूल गुण है। विश्व को करुणा की आवश्यकता है, Encourage educations, तो इसलिए शिक्षा को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है practice और जितना हो सके वो जिसको बढ़ा सकें। focus on similarity. हम लोगों को जो समानताएं हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, जो अंतर हैं उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। और जो क्रोध को नष्ट करने के लिए शांति से ही संभव हो सकता है। तो परम पावन जी और प्रोफेसर बकार को धन्यवाद है। The Holiness, Your Holiness तो office, अंतिम में परम पावन जी को ऑफिस मुस्लिम मूवमेंट मलेशिया President of Vajrayana Buddhist Council पेचे Malaysia, हैं, बजराना काउंसिल Buddhist Center, ट्रिब्यूट बुद्धिस्ट सेंटर, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने साथ साथ कार्य काम this forum. और इस काम करने के लिए जो अवसर We would प्राप्त also हुआ। like to dedicate this merit तो ये जो long life, Your Holiness, जो भी पुण्य प्राप्त किया है परम पावन दीर्घायु के लिए प्रार्थना करता हूँ। and safety प्रोफेसर for डाटो everyone और सभी join के us today. जो सेफ्टी में रहें। We hope Your Holiness और अंत में can ऐसे visit us in Malaysia and Singapore. ये उम्मीद है कि परम पावन जी मलेशिया We पधार look सकें। forward to organize more forum.
तो और इस प्रकार के फोरम को करने की कोशिश करेंगे और इस्लाम और बौद्ध धर्म के बीच सामंजस्य एक दूसरे को समझ सकें, ये कोशिश करेंगे। Thank you, Your Holiness. Yes. तो Especially अंत में परम पावन जी बहुत बहुत धन्यवाद। टस्तिले I'm thinking, looking forward, a visit तो मैं सोच रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ कि सिंगापुर जाऊँ, मलेशिया जाऊँ, I'm ready तो मैं तो तैयार हूँ। as soon as now this लेकिन illness here, ये जो समस्याएं, बीमारी ख़त्म हो, the seriousness eventually is reduced, then I think after a few months, next year, हो सकता है कि कुछ महीने बाद या अगली वर्ष जो है आ सकूँ, सिंगापुर आ सकूँ, मलेशिया आ सकूँ। so visit Malaysia with the memory of Khalsa, Tunku Abdul Rahman, Tunku Abdul Rahman. तुमको रामन इसको मैं याद रखता हूँ, So helpful. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं रहे हैं। Raise Tibetan issue at तो UN. जब भी मैंने इसके कोशिश की, यूएन में बात उठाई, तो उन्होंने बहुत ही मदद की। So I, with memory about तो उस अपनी याददाश्त को लेकर के वहाँ आना चाहूँगा। very much want to visit Singapore and Malaysia. Okay, see you again. फिर से कभी मुलाकात होगी। I think धन्यवाद। next year हो सकता है अगले वर्ष I come. निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा कि आऊँ। Thank you. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। Thank you, Holiness. thank you, Your Holiness. Tu Che. Your Holiness. Hope to see. Thank you, Your Holiness. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you, Professor. Thank you. Thank you, Thank you, Professor Professor. Dato Osman. Thank you. And thank you, Encik Faiza and all the Arbin's group for Thank your you, support. KC and Thank you. TBCC. Thank you, Dato Azman as well. Thank you all. Thank you. My Okay, thank you. Sadhu. In case my visit Malaysia, perhaps some local, not only local Muslim, but some Muslim countries, some Shia and तो अगर मैं मान लीजिए कि मलेशिया आता हूँ, तो उस समय केवल बुद्धिस्ट लोगों से नहीं, तो वहाँ के स्थानीय जो मुस्लिम हैं उनके साथ भी, शिया और सुन्नी, उनके साथ में वार्ता करना चाहूँगा। I feel small contribution regarding promotion of और मेरे यही कोशिश रहेगा कि शिया और सुन्नी के बीच में किस प्रकार से सामंजस्य बन सके, ये मैं कोशिश करूँगा। तो ये मेरा ये शौक़ है, ये उम्मीद है कि मैं ऐसा कर सकूँ। example और भारत एक इसका उदाहरण है। Muslim countries representative. और कई देशों के मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं, धार्मिक लोग आ सकते हैं, तो उसमें हम बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। Bye bye.